تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف 5 جون 2013 کو پاکستان کی تاریخ میں تیسری بار جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو یہ ایک تاریخی ریکارڈ تھا، لیکن شاید یہ نواز شریف کی نہیں بلکہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہر بار ان کو وزارت عظمیٰ کی مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف جب تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال رہے تھے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی وہ واحد منفرد شخصیت بن گئے تھے جن کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا تھا۔ ان کی جماعت کو ایک اعزاز اس سے پہلے بھی 1997 میں مل چکا تھا، جب ان کی جماعت نے قومی اسمبلی میں 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کی تھی۔ یہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی جماعت کو بھی الیکشن میں اتنا بھاری مینڈیٹ نہیں ملا، لیکن 1999 کے اختتام پر فوج نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر اس طیارے کو اغوا کرنے کا مقدمہ چلا جس میں جنرل پرویز مشرف سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے۔ انہیں عمر قید کی سزا ہوئی، لیکن تھوڑے عرصے بعد انہیں خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ اتنے بھاری مینڈیٹ کے بعد اس انداز میں ان کے عہد حکومت کا خاتمہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ جلا وطنی کے دوران انہوں نے 2 مرتبہ وطن کی سرزمین پر قدم رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا۔ 1997 کے بعد جو 2 الیکشن جنرل پرویز مشرف کی صدارت میں ہوئے، ان میں کسی جماعت کو بھی سادہ اکثریت نہ مل سکی، یہاں تک کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کو بھی سادہ اکثریت نہ مل سکی اور اس نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر 5 سال تک حکومت کی۔ جب نواز شریف تیسری بار حلف اٹھا رہے تھے تو ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ضرور چل رہا تھا کہ اپنے اقتدار کے پہلے 2 ادوار میں کہاں کہاں ناکامیاں ان کا مقدر ٹھہری۔ پہلے دور اقتدار میں ان کی جماعت سیاسی جماعتوں کے اتحاد IJI کا حصہ تھی۔ ظاہر ہے وہ ساتھی جماعتوں کے نقطہ نظر کو بھی ایکوموڈیٹ کرنے پر مجبور تھے اور کلی طور پر اپنی جماعت کے منشور پر انحصار نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جلد ہی ان کے صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے جو اس وقت اپنے انتہا کو پہنچ گئے جب انہوں نے صدر کے خلاف سرکاری ٹیلی ویژن پر آ کر تقریر کر دی اور زور اس بات پر دیا کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے، لیکن اگلے ہی روز صدر اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت ان کی حکومت ختم کر دی۔ صدر کے اس اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا جس نے قومی اسمبلی اور حکومت بحال کر دی، لیکن صدر مخالف جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی چالیں چلتے رہے، یہاں تک کہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کی مداخلت سے وزیر اعظم اور صدر اکٹھے ایوان اقتدار سے رخصت ہو گئے۔ نواز شریف کا دوسرا دور حکومت 1997 کے انتخابات کے نتیجے میں شروع ہوا، لیکن وہ مثالی بھاری مینڈیٹ کے باوجود اپنی مدت پوری نہ کر سکے۔ انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا اور نیا آرمی چیف مقرر کر دیا، جس کے جواب میں فوجی رد عمل سامنے آیا اور نواز شریف کی حکومت ان کے قید و بند کے سفر کے آغاز کے ساتھ ختم ہو گئی۔ جن حالات میں ان کی دوسری حکومت ختم ہوئی تھی، جس طرح ان کی جماعت کے ساتھی جنرل پرویز مشرف کے کیمپ میں چلے گئے اور جس طرح مسلم لیگ کاف فوجی چھتری تلے قائم ہوئی تھی اور انہیں جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دوبارہ بھی سیاست میں اس طرح ابھریں گے۔ 2008 کے الیکشن سے پہلے وہ ان حالات میں واپس آئے تھے کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آخری دن تھا۔ بہرحال ان کی جماعت نے الیکشن لڑا اور قومی اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت اور پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی قیادت میں 5 سال حکومت کی اور اگر کہا جائے کہ مسلم لیگ نون کی کامیابی میں حکومت کی اس 5 سالہ کارکردگی کو بھی عمل دخل حاصل ہے تو بے جانا ہوگا۔ جب میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن رہے تھے تو حالات اس وقت سے کافی مختلف تھے۔ جب وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے اس وقت کوئی 9/11 نہیں ہوا تھا، دہشت گردی جو 2013 میں عام تھی تب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، خودکش حملہ آوروں کا کوئی وجود نہیں تھا، ڈرون حملے نہیں تھے، لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، بجلی نہ صرف دستیاب تھی بلکہ موجودہ حالات کی نسبت کافی سستی بھی تھی، صنعتوں کا پہیہ چل رہا تھا۔ لیکن یہ تمام مسائل 2013 میں جب نواز شریف وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے تھے تب موجود تھے۔
अमेरिका ने दहशत गर्दी के खिलाफ दुनिया भर में जो जंग शुरू की थी उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था। पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने इस जंग में जानों के नजराने पेश किए। 40,000 के लगभग सिविलियन अफराद ने भी जानें दी। मईशत का नुकसान एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 100 अरब डॉलर से ज्यादा था। इन हालात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वजीर आजम बन रहे थे तो अवाम ने उनसे तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा वाबस्ता करनी थी। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से कहा था कि वो उन्हें इतना मैंडेट दें कि उन्हें हुकूमत साजी के लिए दूसरी जमातों की मोहताजी न रहे। अवाम ने उनके इन अल्फाज की लाज रखी और गुज़श्ता 2 इलेक्शनों के जीतने वालों के मुकाबले में उनकी जमात को वाज़े मैंडेट दिया। 1997 में जब उन्हें 2/3 अक्सरियत मिली थी तो एक बार फिर 16 साल बाद उनको वाज़े अक्सरियत हासिल हो गई थी। विफाक में वो अपने बलबूते पर हुकूमत बना चुके थे। पंजाब में तो उनकी जमात को 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल हो गई थी। शहबाज शरीफ तीसरी मर्तबा वज़ीर आला बन चुके थे। उस वक्त मियां साहब के सामने जितने भी मसाइल थे वो तमाम अवाम के बराह रास्त मसाइल थे। मियां साहब को जो मैंडेट मिला था उन्होंने उसकी लाज रखने की जिम्मेदारी ले ली थी। अवाम ने उनसे सिर्फ लोड शेडिंग कम करने और रोजगार की जो उम्मीदें लगाई थी उनके लिए मियां नवाज शरीफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जब 2018 में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की मुद्दत खत्म हुई तो इस दौरान मुस्लिम लीग नून ने कई उतार चढ़ाव देखे और इसके खिलाफ धरने से शुरू होने वाला ये सफर डॉन लीग से होते हुए नवाज शरीफ की नाअहली पर खत्म हुआ। माजी की तरह इस मर्तबा भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तनाव का शिकार है। इक्तदार से तवील अरसे से दूरी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने जब इक्तदार संभाला तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खासे पुरएतमाद और पुरअज़्म थे और इस बात में कोई शुबा नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के हालात की अबदरी को बेहतर करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। ऐवान में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी ने तो उन्हें ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा था कि मियां साहब अभी हम सियासत नहीं करेंगे और सियासत हम इलेक्शन के करीब आखिरी साल करेंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में धांधली और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवालात उठा दिए थे। तहरीक इंसाफ 1 साल बाद ही इंतखाबात में धांधली की तहकीकात न करने पर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धरना दे दिया। इस धरने में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी शामिल थे। धरने के शुरका इंतहाई हसास इलाके में पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए और पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश भी की। इन हालात में पीपल्स पार्टी और एमकेएम समेत दूसरी सियासी जमातों ने हुकूमत का साथ दिया और पार्लियामेंट में रहकर मसले हल करने पर जोर दिया। हसास मकामात पर फौज तैनात कर दी गई और धरने का जोर टूट गया। तहरीक इंसाफ का ये धरना 126 दिन तक जारी रहा और दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद इमरान खान ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को शुरू में ही काम नहीं करने दिया, लेकिन उनकी हुकूमत के पहले 4 साल पाकिस्तान की तारीख के सबसे खुशहाल साल थे। दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी लाहेअमल मुरतब करने के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब देने की मंजूरी दी, जिसके बाद कौमी असेंबली में आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतें कायम की गयी। गो के इस नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन मुल्क में अमन व अमान की हालत बेहतर करने की जानिब ये अहम कदम जरूर था। कराची में भी सियासी जमातों की मुशावरत से शरपसंद अनासिर के खिलाफ रेंजर्स की सरबराही में ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई थी। इंतखाबात में कामयाबी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इक्तसादी तरक्की और इस्लाहात के लिए अहम मंसूबों का ऐलान किया। अप्रैल 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने न सिर्फ पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, बल्कि 46 अरब डॉलर की लागत से चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मंसूबे का ऐलान भी किया। सी पैक का सिर्फ ये मंसूबा ही नवाज शरीफ के लिए ताहयात वज़ीर आज़म रहने के लिए काफी था, लेकिन ये सिर्फ इस हुकूमत और पाकिस्तान की खुशहाली की एक शुरुआत थी। इसके अलावा मुल्क में मोटरवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का काम तेज कर दिया गया। मुल्क में मोटरवेज की तामीर
اور توسیع को जारी रखा गया। 5 वर्षों में मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों पर तेजी से काम हुआ। कराची हैदराबाद मोटरवे, रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर मेट्रो बस, लाहौर ऑरेंज ट्रेन मंसूबे, LNG दरामद के मंसूबे समेत मुतअद्दिद मंसूबे मुकम्मल हुए। पेशावर से कराची तक मोटरवे मुकम्मल करने का क्रेडिट नवाज शरीफ के सर पर हमेशा रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दीगर मंसूबों का आगाज भी किया गया। मुल्क में तवानाई के बहरान से निमटने के लिए तवानाई के कई मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें नए पावर प्लांट्स की तामीर और तवानाई के शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के इक़दाम शामिल थे। मुस्लिम लीग नवाज के दौरे इक़्तिदार में कबाइली इलाकों में बरतानवी दौर से राइज FCR का खात्मा हुआ और सियासी जमातों की मुशावरत से हुकूमत ने फाटा में इस्लाहात मुतारिफ करवाने और उसे खैबर पख्तूनख्वा में ज़ब्त करने के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी दी। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम के बाद सूबाई असेंबली में फाटा के लिए नशिस्तें मुख्तस की गयी। कबाइली इलाकों में तरक्की के लिए फाटा को खुसूसी रकम दी गई और कबाइली इलाकों में पाकिस्तान के आइन के तहत कवानीन का इतलाक किया गया। मईशत को मुस्तहकम करने, गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने और इक्तसादी तरक्की को तेज करने के लिए मुआशी इस्लाहात नाफिज हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए लाहौर इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में मेट्रो बस के मंसूबे शुरू किए गए। तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात मुतारिफ करवाए, जिनमें तलबा को लैपटॉप की फराहमी और नए तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में सेहत के शोबे में जंगी बुनियादों पर काम हुआ। सेहत की देखभाल के मंसूबे शुरू किए, जिनका मकसद तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाना और सेहत की देखभाल की खिदमात तक रसाई था। डॉक्टर्स की अस्पतालों में मौजूदगी को यकीनी बनाया गया। पार्किंग माफिया को लगाम डाली गई। गवादर बंदरगाह और उससे मुंसलिक बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई ताकि रवाबित और तजारती मौके को बढ़ाया जा सके। खास तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPEC को बहुत तवज्जो दी गई। दही तरक्की, ज़राअत और गुर्बत के खात्मे के मकसद से प्रोग्राम्स और मंसूबों को नाफिज किया गया। नवाज शरीफ को अपने दौर में ना तेल के महंगे होने का मसला था, ना डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ। नवाज शरीफ के मसाइल सियासी थे, मुआशी नहीं थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हर लिहाज से पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक सुनहरा दौर था। मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ था। पाकिस्तान की खुशकिस्मती इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि नवाज शरीफ के दौर में IMF से कर्ज लिए बिना बजट का ऐलान किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। मुल्क में बैनुल अक़वामी टीमें खेल के मैदान में उतरी। श्रीलंकन टीम पर हमला होने के बाद कोई भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान का रुख नहीं कर रही थी। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में खेल के मैदान दोबारा आबाद हुए। पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन शरह 65 रुपए लीटर पर आ गया। गैर मुल्की सरमायाकारी अपने अरूज पर थी, मगर फिर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों का मैदान सज गया। इनको हम नवाज शरीफ की नाकामियां नहीं कह सकते, लेकिन इन पर नजर डालना जरूरी है। इन 5 वर्षों में जहां पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात में वसअत आई, वहीं दीगर हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बहुत खराब रहे। 3 हमसाया ममालिक ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद बेहतर होने की बजाय खराब से खराब तर होते गए। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुसालहत और तालिबान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार भी कम हो गया है। ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा तो किया, लेकिन उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान ही बलोचिस्तान से इंडियन जासूस गिरफ्तार हुआ। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काबुल से अचानक लाहौर पहुंचे, लेकिन ये इत्तफाकी मुलाकात भी एतमाद साजी बहाल नहीं कर सकी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत कशीदा रहे, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साले 9 का आगाज ही पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट से किया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सिफारतकारों पर मुख्तलिफ नौयत की पाबंदियां आयद कर रखी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद भी रोक दी थी, जिसका नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन हो चुका था। 16 दिसंबर को जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना धरना खत्म किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर जो दूसरा हमला हुआ, वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था।
3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर लीक हो गए। इन पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम आ गया। इमरान खान ने इस मसले को खूब पकड़ा और असेंबली के बाहर एहतजाज का नया सिलसिला शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बना दिया जिसकी रिपोर्ट पर नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। पनामा पेपर्स के 1.25 साल बाद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अडयाला जेल पहुंच गए थे। पनामा लीक्स के हंगामे में तहरीक इंसाफ जहां भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी, वहीं अक्टूबर 2016 में डॉन अखबार में एक खबर शाया हुई जिसमें कहा गया कि एक इजलास के दौरान सिविलियन हुकाम ने अस्करी क़यादत से कहा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें या फिर बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा होने के लिए तैयार रहें। इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो कशीदगी 2014 के धरने के वक्त शुरू हुई थी वो मजीद बढ़ी और तनाज़ात खुलकर सामने आने लगे। डॉन लीक्स की इस खबर के बाद ISPR की जानिब से ट्वीट में इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया और बज़ाहिर हुकूमत और फौज के दरमियान तनाव की वजह से मशीर इत्तलात परवेज रशीद और तारिक फातमी को मुस्ताफी होना पड़ा। हुकूमत ने अपोजिशन की मुशावरत से इलेक्शन इस्लाहात मुतारिफ करवाने के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी दी, लेकिन इस आईनी तरमीम में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के हल्फनामे की इबारत तब्दील हो गई। गो कि हुकूमत का कहना था कि दफ्तरी गलती थी, लेकिन मजहबी जमातों ने इस मामले पर खूब हंगामा किया। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने मुख्तलिफ मजहबी जमातों के साथ एहतजाज करते हुए नवंबर 2017 में रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शाहरा पर धरना दिया और वजीर कानून से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। इस धरने से दारुल हुकूमत में जिंदगी मफलूज होकर रह गई और हुकूमत की जानिब से दी गई मुतादिद डेडलाइंस के बाद धरने के शुरका के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया, लेकिन इसमें ऑपरेशन में पुलिस और FC को पसपाई हुई। आखिर में फौज की मुदाखलत से तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पाया और पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट की तरमीमी बिल की मंजूरी दी। अक्टूबर में तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए इस्लामाबाद में एक और धरना देने का ऐलान किया, जिसके बाद नवंबर में अदालती हुक्म पर इमरान खान ने अपना धरना खत्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर करते हुए समाअत शुरू की। फरवरी 2017 में पनामा मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया और अप्रैल में फैसला सुनाते हुए अदालत ने तहकीकात के लिए GIT बनाने का हुक्म दिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2017 में अदालत में जमा करवाई और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने जलसों में बारहा ये सवाल उठाया कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का नया वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और उनकी सरबराही में ही इस हुकूमत ने अपना दौरे इक़्तिदार मुकम्मल किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग तो कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रही। उनके नामजद करदा वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्लियामेंट में उनकी कमी को पूरा किया। उन्होंने जिस खूबसूरती और एतमाद के साथ हुकूमत चलाई, उससे उन्होंने साबित कर दिखाया कि नवाज शरीफ का दुरुस्त इंतखाब था। वो बजा तौर पर ये दावा कर सकते हैं कि वो 2013 के मुकाबले में 2018 को बेहतर पाकिस्तान देकर जा रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 5 जून 2013 को पाकिस्तान की तारीख में तीसरी बार जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो ये एक तारीखी रिकॉर्ड था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नेशनल ग्रिड में 11,400 मेगावाट बिजली का इजाफा करके जा रही थी। इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने तीसरे दौरे हुकूमत में जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस कदर मेगा तरक्याती मंसूबे शुरू किए कि उनका नामजद वज़ीर-ए-आज़म इन मंसूबों का इफ्तिताह करते करते थक गया, जिसका उन्होंने मियां नवाज शरीफ से जिक्र भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 11 माह के दौरान रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया था। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हर हफ्ते 2-3 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करते थे। आखिरी दिनों में तो वज़ीर-ए-आज़म ने एक दिन में 2 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। हत्ता कि उन्होंने अपनी हुकूमत के आखिरी दिन भी अपने लिए बेपनाह मसरूफियात तलाश कर रखी। उन्होंने एक दिन में 5 से 6 इजलासों की सदारत करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत खत्म होने से चंद घंटे कबल कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास मुनक्किद करके फाटा को टैक्स की 5 साल की छूट देने की मंजूरी भी दी।
उन्होंने अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म होने से एक रोज कबल असम्बली तहलील करने की एडवाइस देने से इनकार कर दिया और कहा कि आखिरी सेकंड तक पार्लिमान कायम रहेगी। सैयद खुर्शीद शाह कौमी असम्बली अपनी मुद्दत खत्म होने से एक रोज कबल तहलील करवा कर आम इंतखाबात करवाने के लिए 90 दिन की गुंजाइश चाहते थे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी निगरान हुकूमत को इंतखाबात कराने के लिए 60 दिन से एक दिन भी ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे। पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली कौमी असम्बली के साथ तहलील हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली 2 रोज कबल तहलील हो चुकी थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी क़यादत से रहनुमाई हासिल करके लम्हा भर के लिए अपनी क़यादत को आंखों से ओझल नहीं होने दिया। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि 10 माह के दौरान नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर तो फायज नहीं रहे, लेकिन उनका ही हुक्म चलता रहा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हर प्लेटफॉर्म पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपना लीडर तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सबसे बड़ा कारनामा निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर इत्तफाक़ राय पैदा करना था। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ड्रामाई अंदाज में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक़ राय पैदा करके सियासी हलकों को सरप्राइज दिया। एहतसाब अदालत में सितंबर 2017 में शुरू होने वाली कार्रवाई का सिलसिला तकरीबन 10 माह तक जारी रहा, जिसमें नवाज शरीफ ने 80 से ज्यादा पेशियों में हाजिरी दी। इसी असना में उनकी अहलिया कलसूम नवाज को कैंसर की वजह से लंदन में अस्पताल दाखिल होना पड़ा। एहतसाब अदालत में पेशियों के साथ साथ नवाज शरीफ ने मुल्क भर में रैलियों का आगाज कर दिया, जिसमें उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा पेश किया और अपने खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई को एक साजिश करार दिया। लेकिन गुज़श्ता साल की तरह एक बार फिर अदालती फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया और जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर लगाए जाने वाले करप्शन के इल्जामात की बिना पर उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत और 8 मिलियन पाउंड के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो अपनी अहलिया की सेहत बेहतर होने के बाद जल्द वतन वापस आएंगे। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के बाद 13 जुलाई को नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा वतन वापस लौट आए, जहां उन्हें एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया और अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद नवाज शरीफ को जेल से मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात में अपनी जमात की शिकस्त देखनी पड़ी, जहां उनके खिलाफ पनामा पेपर्स का मुकदमा दायर करने वाले हरीफ इमरान खान को जीत नसीब हुई और उन्होंने अगस्त में वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अगले माह की 11 तारीख को नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज का लंदन में कैंसर के बाइस इंतकाल हो गया, जिसके बाद नवाज शरीफ को पे रोल पर रिहा कर दिया गया ताकि वो उनके जनाजे में शिरकत कर सकें। कलसूम नवाज की वफात के बाद एक हफ्ते की पे रोल मिलने के बाद नवाज शरीफ और उनकी बेटी और दामाद को अडयाला जेल दोबारा भेज दिया गया। कलसूम नवाज के इंतकाल के चंद रोज बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का नतीजा सामने आ गया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। लेकिन इन मुकदमात से बरियत के बावजूद नवाज शरीफ की अदालती मुश्किलात खत्म न हुई। इस साल मई में अंग्रेजी अखबार डॉन को दिए गए एक इंटरव्यू के नतीजे में उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी समाअत के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा। यही सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहा, जब उनके खिलाफ 1986 का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और वहां भी उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़े। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।